Hello everyone, welcome back to another MT's video. Today I'm going to be showing you products which I happen to finish in quite some time, and yes, will I be repurchasing them, and consider this video as more of a small review video as well. दो मैंने ये सारे products अपने channel पे पहले भी review किए हैं, कहीं ना कहीं बात की होगी, आपको already एक idea होगा इन products के बारे में, how do I feel about them, but nevertheless I will give you like a mini review on all of the products as well. So without any further ado, let's get started. Let me get away with this heavy object around me because मुझे डर है कि ये गिरेगा और टूटेगा. Is the L'Oreal Extraordinary Oil Serum for all hair types. Don't ask me the number of bottles I've used. मैंने already नई यूज़ कर रही हूँ. इसमें बस मात्र इतनी बची है जो पंप में नहीं आती, तो मैंने एक आइडिया लगाया कि मैं इसे खोलूँगी और इसका जो बच्चा कुचा प्रोडक्ट है अपने वो नई वाली बॉटल में फिल इन कर लूँगी. लेट्स नॉट वेस्ट बिकॉज दिस इज़ लाइक एन एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन. अगर आपको स्मूथ शाइनी डिटेंगल्ड हेयर चाहिए, अगर आपके ड्राई और फ्रिजी हेयर हैं और आपको एक इम्प्रूवमेंट चाहिए बालों में, दिस इज द प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट इन. इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इट इज जस्ट अ हेवी बॉटल पैकेजिंग. Otherwise, the oil, the serum is beautiful. Like I just cannot live without it. मेरे पास तो इसका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है. So I have already repurchased it. Next up, a moisturizer जो finish हो गया है, and I have thoroughly enjoyed this moisturizer. Well made for combination to oily skin and well made for this scorching hot summer. Is the Pilgrim Secret of Jeju Island moisturizer. It is into a gel format. इसमें थोड़ा सा बचा है. मैंने इसे MTs में इसलिए डाल दिया है so that क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आज फिनिश हो जाएगा. तो why to use it today and then keep it for another MTs? Maybe I will not be able to show you all together. But this is a beautiful moisturizer for people who have combination to oily skin, people who have extreme oil secretion onto the skin. You want to give that instant modification to your skin with a little bit of hydration. This is something to go for, and it says it is oil free, so you take that thing very seriously. So that is why brands mention certain things which are very important as per skin type. So it is definitely well done for combination to oily skin. Next up, a body lotion which is completely over, is by the brand Bath and Body Works. This is the Waikiki Beach Coconut 24-hour moisture ultra sheer body cream. Oh my god, I think Body Shop के body lotions भी आपको try करना चाहिए, something like this. And I have been loving their body butters also. मेरे दोनों खत्म हो गए हैं. The second one has a little bit, but वो भी finish हो जाएगा another 3-4 days में. So I have absolutely loved it. अगर मैं next Bath and Body गई या कुछ नया offer आया तो I will definitely repurchase few more. Not the same variant, but I really like the consistency and how it sat onto my skin. It was one of my best friends in winters as well as in this summer. So yes, I have used it thoroughly, enjoyed it thoroughly. This is one thing which you will go back and repurchase again and again. But Bath and Body में हमेशा variants change हो जाते हैं, नए नए फ्रेग्रेंस ऐड हो जाते हैं, तो why you have to buy the same thing? I feel Bath and Body में you should always keep trying new scents, because this Bath and Body is all about different scents you can enjoy in your life. So I would definitely go back and repurchase the new variant. Next up, a cleanser. मैंने खरीदा, इसे यूज भी कर लिया और ये खत्म भी हो गया. And I have talked about this cleanser in a cleanser video also. So have you checked out my top 10 cleansers and moisturizer वाली वीडियो जो मैंने recently पोस्ट की थी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स. यस बेटा, ये बात तो आपने क्यों खोला उसको? एक ही ठीक है. हाँ ना? हाँ, My kid was there, he wanted to ask me something. Let's back to the cleanser again. So जैसा कि मैं बोल रही थी, मैंने already वीडियो की है top 10 cleansers, top 10 moisturizers. Do check out that video if you haven't, because I have talked about products which I have used like thoroughly, repurchased again and again, and my full thorough experience with all of the products. So talking about this cleanser, it is by Kaya. This is a complete cleanser made for combination to oily skin, people who have acne prone skin. You want to heal your acne with the help of a cleanser also, you can do so with this cleanser. Now a cleanser plays a very important role, because अपना फेस वॉश करते हो, और आपने देखा होगा आप कोई भी फेस वॉश उठाओ, कोई भी डिफरेंट वाले फेस वॉश, सवाई फेस वॉश का एक इफेक्ट दूसरा ही होता है आपके चेहरे पर. सो पिक अप योर क्लेंजर वाइजली, व्हाट योर स्किन नीड्स अकॉर्डिंगली. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्लेंजर जो मैं समर्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं विंटर्स में यूज़ नहीं करती, बिकॉज में टी ट्री है, इट इज़ अ ड्राइंग एजेंट, एंड आई लाइक यूजिंग इट बिकॉज मुझे एक्सेस
मैसिव सीरम सेक्रेशन होता है, और ये फेस वॉश से अगर वॉश कर लो तो काफ़ी अच्छे से रिंस हो जाता है, फेस क्लेंस हो जाता है, और मुझे एक अच्छा सा क्लीन वाला फेस मिल जाता है। उसको मुझे रिपर्चेज करना है बिकॉज अभी भी मुझे ज़रूरत है उस फेस वॉश की। बहुत छोटा ट्यूब आता है, सो आई नीड टू रिपर्चेज। लेट्स मूव ऑन टू सम हेयर केयर प्रोडक्ट। दिस इज द नायका नेचुरल्स चारकोल बम्बू हेयर मास्क। इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की, खत्म हो चुका है। दिस इज लाइक वो ढक्कन था उसका, कम्प्लीटली ओवर, नॉट समथिंग आई लव्ड फ्रॉम नायका नेचुरल्स। ना मुझे नायका नेचुरल के शैम्पूज हेयर मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, बट दिस इज नॉट द वेरिएंट विच आई लव्ड। आई फील ये मेरे बालों को ड्राई करता है। द राइस एंड फर्मेंटेड बैम्बू वाला ज़्यादा अच्छा है मेरे बालों के लिए। दिस वेरिएंट इज़ नॉट मेड फॉर मी। आई फील ये वेरिएंट उन लोगों को सूट करेगा जिनको बहुत क्रीसीनेस वाली इशू है, जिनके बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ हो जाते हैं। आई थिंक दिस कैन वर्क फॉर देम, नॉट मेड फॉर मी। आई विल नॉट बी रीपर्चेजिंग इट। नेक्स्ट अप अ मॉइस्चराइजर अगेन, होली ग्रेल, एवरीडे यूज करती हूँ मैं इसे, ऑलरेडी रीपर्चेज कर चुकी हूँ, ऑलरेडी ऑन टू माई 3rd जार। 2 बैकअप्स हैं मेरे पास, इसके बिना नहीं चलता मेरा। इज दी माई ग्लैम इरिडेसेंट ग्लो इरिडेसेंट ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। पूरा खत्म हो चुका है ये, ऑलरेडी आई एम ऑन टू माई नेक्स्ट जार, एंड मैंने सेफर साइड के लिए एक भेज दिया है पैकिंग में, ऑलरेडी 2 खरीद लिए हैं, सो यू नो हाउ मच आई लव इट। Every day I use it. This is one of my holy grail moisturizers. इतना ज़्यादा प्यार मैंने किसी मॉइस्चराइजर को नहीं किया अपनी लाइफ में जितना मैंने इसे किया है, बिकॉज इट जस्ट गिव यू द इंस्टेंट ब्राइटनेस, इट डज हील योर स्किन, बहुत करेक्टेड स्किन मिलती है। यूज़ करो इसे रेगुलरली, यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर स्किन। एंड आई मस्ट टेल यू, जब से मैंने इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स दैट योर स्किन हैज़ गॉन सो गुड, योर स्किन लुक सो यंग, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 30+, so yes, compliments like those coming. This moisturizer does add up, so yes, अगर आपको एक एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर इंक्लूड करना है अपने स्किन केयर रूटीन में, ये वाला ट्राई करो। माई ग्लैम वेबसाइट से खरीदो इसे, बिकॉज यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो yes, this is a beautiful moisturizer. And another beautiful thing about that moisturizer is that अगर आप वो लगा रहे हो मेकअप करने से पहले, आपको एक स्ट्रोक क्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज लाइक मल्टी यूज। नेक्स्ट अप क्लेंजर, मेकअप रिमूविंग क्लेंजर, जो अब नहीं मिलेगा आपको फेस शॉप पे, इज द फेस शॉप ऑल क्लियर फॉर स्मार्ट क्लेंजिंग ऑयल विप। दिस इज हाउ इट इज नाउ। ये प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये प्रोडक्ट आपका मेकअप एंड क्लेंजिंग दोनों साथ में कर देता है, बट दिस इज एन एक्सट्रीम ड्राइंग प्रोडक्ट विच आई डिड नॉट एंजॉय यूजिंग, इसीलिए इसको ख़त्म करने में बहुत टाइम लग गया मुझे। एंड मोस्टली मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट ये इस टाइम में यूज़ कर लिया, बिकॉज समर्स थे तो वेदर अप्रोप्रिएट भी है, बट समर्स में भी ये बहुत ड्राई करता है। सो समथिंग विच अगर कभी रीस्टॉक हुआ फेस शॉप में तो मैं नहीं खरीदूंगी, एंड आई वुड नॉट इवन रेकमेंड एनीवन टू बाय दिस। इट सीम्स इजी टू यूज, एक स्टेप डिलीट कर देता है, बट बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है। So yes, for those reasons I will not be buying this anymore if it gets restocked. Something which I don't recommend anyone to buy. Next up, one of my favorite shampoos to use apart from the Nykaa one which I use is the TRESemmé Keratin Smooth Shampoo. ये एक स्टेबल शैम्पू है जो मेरे बाथरूम में होता ही है, एंड आई टेल यू पिछले 6-7 महीनों में मैंने ये और नायका वाला शैम्पू ही यूज़ किया है। I don't think I've used any other shampoo apart from these 2 shampoos and they work beautifully onto my hair. अगर आप अपने बाल आइनिंग ज़्यादा करते हो, कर्लिंग ज़्यादा करते हो या कलरिंग करते हो फॉर दैट मैटर, योर हेयर्स आर ट्रीटेड मोस्टली, then this shampoo is the one to go for. I absolutely love how it sits and I'll tell you, जितने भी लोगों से मैंने आज तक पूछा भी है या recommend किया है ये shampoo, all of them have loved it. And buy the big size, you save a lot of money. It is a beautiful shampoo which will give you soft and smoother hair. Dryness definitely निकाल देता है ये बालों से. Be consistent with the shampoo, you will definitely see some changes. Next up, a conditioner जो मैं अपने ट्रिप पे ले गई थी और मैंने आपको दिखाया नहीं दिखा पाई थी, अब मैं दिखा देती हूँ. इस द लॉरियल 6 Soil Nourishing Hair Conditioner. ये मैं आपको हॉल में भी नहीं दिखा पाई थी. Guys, now before I get into any further talking, by that video जहाँ मैंने एक हॉल वीडियो किया है जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, एंड उस वीडियो पे कमेंट आया कि why can't you just get up, take out the product from your suitcase and show it, because it's a haul video.
since you knew that you were filming a video. Guys, ऐसा बोलना आसान होता है, but I'm not blaming everyone. I'm not saying कि आप ऐसा बोलते हो, but comment coming like this when I'm even clarifying in my video that you will see that product somewhere, and since it is already a long haul video, अगर मैं आपको ये कंडीशनर नहीं भी दिखाऊंगी तो आपको पता है how good it is because I've already talked about this product. And मुझे नहीं लगता the videos are just about showing products in the hand. It depends how much I talk about it, what are my thoughts on the product and my experience. So मुझे कभी कभी ये भी नहीं समझ आता कि जनता को देखना क्या है, प्रोडक्ट इन द हैंड्स और द जेन्युइन ओपिनियन ऑफ माइंड. एंड कमेंट्स की उठ के सुटकेस में से निकाल नहीं सकते. इट्स वेरी नास्टी कमेंट आई मस्ट से, बिकॉज जो लोग बिल्कुल ही मुझे फॉलो नहीं कर रहे, सडनली दे जस्ट हॉप ऑन वन वीडियो एंड से अ कमेंट लाइक दिस. इट हर्ट्स because you don't know anything about my life. You don't know what kind of a lifestyle I'm in. Am I married, not married, how occupied I am, how busy I am. I am a mother also, so there are a lot of things goes in. जैसे कि आपने भी देखा फिल्मिंग के दौरान my baby came and he asked, so I cannot ignore him. So a lot of things which goes in, and I do feel before writing such a comment when you don't know a person at all means जैसे कि there are a lot of followers and subscriber like Archana, Nilima, a lot of followers are mine जो मुझे मिष्टी, they have been following me. So वो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं. जो सालों से फॉलो कर रहे हैं तो उनसे ये कमेंट नहीं आएगा बिकॉज दे नो कि मैं सिर्फ यही काम नहीं करती, मैं बहुत सारे काम करती हूँ. सो जस्ट बिकॉज आज आपने मेरी वीडियो देख ली और मैंने एक प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाया और आपने एक कमेंट लिख दिया, सो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये आप गलती ना करो किसी और के पेज पे जाके. टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, यू हैव एनी क्वेरीज, यू वांट टू आस्क समथिंग, फील फ्री टू आस्क. बट ऐसे कमेंट्स थोड़े पर्सनल हो जाते हैं मुझे लगता है. मैंने फिर भी अप्रूव किया उस कमेंट को, मैंने रिप्लाई भी किया, मैंने उस कमेंट को पिन भी किया है. सो अगर आप मेरी लास्ट 3 हॉल्स देखोगे तो उसमें दिखेगा वो कमेंट. And this was one of the major reason I pinned the comment so that everyone should read it. There's nothing to hide about it. But yes, मुझे लगता है किसी का मूड भी खराब हो जाता है तो वैसे comments लिख देते हैं. I really don't know what goes into their head, but it's not easy to sit in front of camera, film a video, post it on YouTube, a bigger platform. It sounds easy, it's not easy. I must tell you. आप करो, आप करके देखो, आपको पता चलेगा. Let's talk about the product here. L'Oreal 6 Oil Nourishing. Now ये मैंने ट्रैवल के टाइम पे खरीदा था. रीज़न भी मुझे मालूम है कि ये पूरी रेंज ही मेरे बालों पे बहुत अच्छी है. सो दैट इज़ वाई आई बॉट इट, यूज इट कम्प्लीटली, ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही अच्छी सी है. बट आई डू फील कि ना कुछ वेदर्स में मेरे बालों पे काम नहीं करती, इसीलिए सर्टन वेदर्स में ही आई वुड प्रेफर एंड बाय दिस प्रोडक्ट. Let's move on to some cleansers which I have finished. So straight up I have like 3 cleansers to show you. First up I have the Nykaa Sandalwood and Orange Peel Cleanser, completely over. Since summer se to I had to use it and it works beautifully onto my skin. It is gel formula, but थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखना कि जेल में है तो थोड़ा ड्राई आउट कर सकती है स्किन. बेसिकली ड्राई स्किन वालों को मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये ऑरेंज एंड सैंडलवुड में है. अगर आप टी ट्री वाला लोगे तो उसमें भी ड्राई लगेगा. अगर आप करेक्ट एलोवेरा वाला लोगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, बट सर्टेन इंग्रेडिएंट्स डू ड्राई आउट योर स्किन. बट अ ब्यूटिफुल क्लेंजर, अफोर्डेबल है, इजिली अवेलेबल है एंड आई हैव रीपर्चेस्ड इट. Next up is the Mamaearth Upton face wash with turmeric and saffron. Again a beautiful cleanser with a little bit of exfoliation also. Again बहुत अच्छी ब्राइटनेस देता है स्किन पे. मुझे इसकी पूरी रेंज ही अच्छी लगी. डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये इसका क्ले मास्क कितना प्यारा है. ओ माय गॉड, आई कॉन्स्टेंटली यूज इट. मुझे इतनी टैनिंग हो गई थी बीच में तो मैं वही यूज़ किया मैंने 2 दिन एंड आई वाज लाइक डी टैंड अगैन. सो येस, अ ब्यूटिफुल क्लेंजर. अगर आपको एक जेंटल क्लेंजर चाहिए अपने फेस वॉश में देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट वन. अगर हम मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो तो आप वेबसाइट से लोगे तो आप एक ब्रॉन 2022 वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. नेक्स्ट अप इज दिस राइस वाटर bright foaming cleanser by The Face Shop. Again one of my favorite cleansers to use.
अगेन दिस इज वन क्लेंजर आई डू फील मेड फॉर एवरीवन है, बट ड्राई स्किन को मे बी थोड़ा ड्राई भी कर सकता है, बट अदरवाइज इट रिमूव्स everything from your skin. It just give you that squeaky clean face. It is into a thick creamy format. बहुत अच्छा लैदर बनता है, फोमिंग बनता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ा ड्राई फील करती है, बट राइस बीइंग द मेन इंग्रेडिएंट हियर, इट विल गिव यू स्किन फर्मिंग एंड स्किन टाइटनिंग। इसके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो येस, अ ब्यूटिफुल क्लेंजर विच आई हैव गॉन बैक अगेन एंड अगेन, और मुझे उसे भी रीपर्चेज करना है। नेक्स्ट अप अ प्रोडक्ट, अगेन समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव, एंड इसकी भी कोई गिनती नहीं है। मेरे ख्याल से ये हर एमटीज में अपनी जगह बना ही लेता है, बिकॉज ये खत्म होता है मैं खरीद लेती हूँ, ये खत्म होता है मैं खरीद लेती हूँ। इज द स्मार्ट पीलिंग वाइट जूल पर्ल बाय द फेस शॉप। दिस इज अ जेंटल एक्सफोलिएटर, जैसे आपका हुडा ब्यूटी का विशफुल का क्लेंजर वो है ना, एंजाइम क्लेंजर मतलब एक्सफोलिएटर, वो बहुत महंगा है, ये सस्ता है। फिर भी ये सस्ता नहीं है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज इसकी कॉस्ट कुछ 900 समथिंग होती है, बट ये डिस्काउंट में मिल जाता है, तो मैं डिस्काउंट में ही ले लेती हूँ इसे। और फेस शॉप साल में एक बार ये ऑफर भी लाता है बाय वन गेट वन, तब भी मैं ये ले लेती हूँ, बिकॉज आई यूज दिस रेगुलरली एंड मोस्टली ऑन माई नेक एरिया इफ आई एम वेयरिंग अ ज्वेलरी। सो येस, अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सफोलिएटर, जेंटल है, ट्राई इन्वेस्टिंग इन वन। नेक्स्ट अप लेट्स मूव ऑन टू लाइक अ मिलियन गजिलियन मॉइस्चराइजर, जो मैंने सारे फिनिश कर दिए हैं, एंड थैंक्स टू माई ट्रैवलिंग ऑल्सो। फर्स्ट अप आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी न्यू, स्मॉल में लिया था मैंने, इसका बड़ा साइज लूंगी जल्दी। लॉरियल रिवाइटल क्रिस्टल फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल क्रीम, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जेल मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छे से सिट डाउन करता है, एक स्मूथ बेस देता है, बट इट्स नॉट लाइक सुपर 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 हाइड्रेटिंग और ऑयली और ग्रीसी ऑन द स्किन। इट सिट्स ब्यूटिफुली, एनीवन वुड लव इट। विंटर्स में मुझे लगता है ड्राई स्किन के लिए थोड़ा ड्राई हो सकता है ये, बट अदरवाइज आई हैव कंप्लीटली लव्ड दिस वन। नेक्स्ट अप इज अ मिनी साइज इनिसफ्री ग्रीन टी सीड क्रीम, अगेन अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर, जो मैंने बिग साइज में भी यूज किया है। आई वॉज कैरिंग दिस वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग, मेरे पास ये था स्टॉक में, so I was like let me use all of the existing skincare I have, and I did carry this one. Again a beautiful moisturizer, creamy है, not again over hydrating. This is one moisturizer which is made for all skin type. Next up is the Calabar Blue Light Defense Luminous Moisturizing Cream, again a beautiful moisturizer made for all skin type, but winters में ये मुझे भी ड्राई करता है, तो मोस्टली मैं इसको समर्स में यूज करती हूँ, तो मैंने इसे यूज करके खत्म कर दिया। विल आई बी रीपर्चेजिंग इट? मे बी नॉट, आई विल सी कितने मॉइस्चराइजर में यूज कर सकती हूँ, उस हिसाब से आई डिसाइड, बिकॉज जैसे ही ये समर्स खत्म होंगे, मानसून आ जाएंगे, फिर विंटर्स आ जाएंगे, सो आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट अप मॉइस्चराइजर विच आई प्लेनली यूज इन विंटर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ last summers maybe, and mostly I used this kind of moisturizer as my night cream, is the Face Shop Green Natural Seed Advanced Moisturizer। पूरी खत्म हो गई है, क्रीमी बेस्ड है, ये दो हैवी नहीं फील कराती है आपको, स्किन पे काफ़ी अच्छे से सिंक इन हो जाती है, स्किन में बहुत अच्छा हाइड्रेशन देती है। अगेन दिस मॉइस्चराइजर कैन बी enjoyed by all skin type. It is not over the top greasy heavy moisturizer like the pomegranate one, but this is like a beautiful one. Will I be repurchasing it? Not as of now because it is expensive, and secondly मुझे नहीं लगता कि मुझे समर में इतनी थिक मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, बट अगर आप ड्राई स्किन हो you can definitely invest into this one because it has green tea. So ये जो एक ingredient है ना, it is lot of goodness, like it will give you anti-aging properties भी देगा, skin firming भी देगा, skin tightening भी देगा, as well as थोड़ा आपको rejuvenation भी देगा, और आपको एक अच्छी skin मिलेगी। So yes, I really like this ingredient, and ये ingredient जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने आज तक देखा है, they have worked absolutely beautiful onto my skin. Moving on to some more interesting products. Now next up is a product which पूरा नहीं खत्म हुआ है, but I have to get rid of this one, is the MAC Stroke Cream. Did you just hear MAC Stroke Cream from me? Yes, you heard. This is the MAC Stroke Cream. ना ये पूरी नहीं फिनिश हुई है, थोड़ी सी बची हुई है। रीजन बीइंग मैंने इसे लगाना इसलिए बंद कर दिया बिकॉज अब इसमें से एक वेग सी स्मेल आ रही है। आई थिंक इट इज एक्सपायर्ड। देखो इसमें बहुत ही एविडेंट वो केमिकल वाली स्मेल आ गई है, इसीलिए आई एम गेटिंग रिड ऑफ इट। येस, आई शुड हैव यूज्ड इट लॉन्ग टाइम बैक, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। दैट इज वाई मैंने थोड़ा बहुत ही लो बाय कर दिया है।
and I have मतलब successfully finished a lot of skincare products without purchasing any more. Yes, and इसके लिए मुझे दुख हो रहा है, but ठीक है, nevertheless I cannot be putting this because ये जब भी मैं लगा रही थी मुझे breakouts हो रहे थे, and this was one of those products which was causing problems, so I am just getting rid of it. Next up, a product again which is causing a little bit of problem to my skin. Again, it is an expensive product. It's the Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. इसमें थोड़ा सा बचा है, थोड़े से ज़्यादा ही बचा है. It's a big jar. Again, this is causing problem to me. I don't know. It's not expired, but it is causing problem to me. That is why I am getting rid of it. ये मैं किसी को दे दूँगी यूज़ करने के लिए. ये मेरे project plan में भी था, but I'm just not liking it. Maybe my skin does not like this anymore, so I will be just handing it over to someone. But otherwise, it is a good priming base. You can even use it as a normal moisturizer. Next up, like I have like 4 things from the same range. समझो ऐसे दिखा देती हूँ मैं आपको ऐसे उठा के. First up is the MyGlam Youthful Sleeping Mask. Completely over हो चुका है ये product. A beautiful product which I thoroughly enjoyed, and I absolutely love the consistency on this one. This is a sleeping mask which is not creasy, not oily, not heavy on the skin. इसकी consistency मुझे बहुत अच्छी लगी. Actually, I would say this you can use it as your normal daily moisturizer also. So it's a beautiful youthful product by MyGlam. Absolutely loved it. Next up is what is this? Moisturizing gel by MyGlam. Again youthful range. थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है जो मैं यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी. ये जो थोड़े से बचे हुए हैं ना वो वन टाइम बचे हुए हैं. सो अगेन अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइज़र. जेल फॉर्मेट में आता है, ये ऐसा जेल फॉर्मेट में आता है. बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है. आई डोंट नो हाउ मच. So again, this is well made for combination to oily skin. Next up, a product which is completely over is the MyGlam Youthful Moisturizing Cream. Now ये dry skin के लिए है, but ये मैंने लिया था winters में use करने के लिए, तो ये winters में और थोड़ा बच गई थी तो I was using it now also. So this one is also completely over, and all of my youthful products are over, leaving the cleanser. I absolutely love that product. And next up, I finished the eye cream as well. This is completely over. खा गई हूँ मैं से. This is beautiful product. Now if you are looking for a good hydrating moisturizing under eye cream, invest in this one. You will get a lot of hydration and it sits beautifully. And last but not the least, a product I don't remember if I showed you in my last empties, but this is something which I completely finished, is the Bath and Body Candle in White Barn Sugared Lemon Zest. I don't remember if I showed you. It is in my basket. I don't know why it is here, but I'll just quickly show you. इसमें से तो अभी भी खुशबू आ रही है, तो ये ऐसे कुछ बच जाता है लास्ट में. सो दिस इज़ कम्प्लीटली ओवर. आई एंजॉयड इट थॉरली. देयर इज़ वन मोर कैंडल विच इज़ लिट ऑन माई लिविंग रूम. अभी peach and something I'm using. Again summer appropriate है. ये जेस्ट वाला भी summer appropriate ही है. So आपको बहुत अच्छा वाला जो सेंट है ना, जो समरी शेड्स हैं या जो विंटर वाले फ्रेग्रेंसेज हैं, वो वाइट बार्न रेंज में बहुत अच्छे मिलते हैं. चेक आउट द वाइट बार्न रेंज. दे हैव अमेजिंग फ्रेग्रेंसेज. सो यस, ये मैं ले लेती हूँ बाय वन गेट वन में या बाय टू गेट टू में. कुछ अच्छे ऑफर में ही लेती हूँ बिकॉज ये बहुत महंगे कैंडल्स हैं. बट आई टेल यू, ये महंगे भी हैं तो बहुत अच्छे हैं. वर्थ इट, वर्थ इन्वेस्टमेंट. यू जस्ट गोना लव योर हाउस. सो यस, ये तो मैंने काफ़ी सारे खरीद के रखे हैं, स्टॉक में बहुत है. सो जब भी कुछ ऑफर आता है मैं स्टॉक अप कर लेती हूँ. देयर यू सॉ अ बास्केट फुल ऑफ एम्प्टीज फ्रॉम स्किन केयर एज वेल एज मेकअप. बट आई मस्ट टेल यू, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से स्किन पे परफॉर्म करते हैं. यस, सर्टन प्रोडक्ट्स आर वेदर ओरिएंटेड, स्किन टाइप ओरिएंटेड हैं. सो यू नीड टू सी कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन. बट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर लाइक वाव प्रोडक्ट्स. मैंने ऑलरेडी कुछ रीपर्चेज कर लिए हैं, कुछ फ्यूचर में रीपर्चेज होंगे. बट येस, दीज आर some of my trusted products. Everything will be linked and listed in my description. अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, consider subscribing to my channel @ranzinki. You can follow me on my Instagram @ranzinki. और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो एक thumbs up भी दे दो. And I will see you in my next one. Till then, you take care and ta-da!